हेलो फ्रेंड्स, so today we are going to talk to ex OTA कैडेट चिन्मय महाले। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हेल्थ और मेडिकल। What is it that you can do before getting into the academy that can make your life in academy better? For that matter, even when you are in the academy, what is it that you should do? What is it that you should follow? Listen to Chinmay. Also, don't forget to subscribe, like, and press that bell button if you like our content. Sir, Hi, Chinmay. I'm good, sir. Sir, am I audible? Jai Hind. How are you? Yes, sir. Oh, totally. Loud and Yeah. clear. Awesome. So I was just trying to tell everyone that Right. we are joined by Chinmay, who's an ex-OTA cadet. I repeat, ex-OTA cadet, because when we say ex-cadet, more often than not, people assume that either you are an NCC cadet or someone. And when you say ex-OTA cadet, there has to be a story, there has to be a reason why, it ended like that. So welcome to Force, Chinmay, and you are here not through your own ID, but through Force. So another aspect that we wanted to bring to everybody is that going forward, we will have some interesting people and learned people like Chinmay who would come and share their thoughts, their experiences with all of you to help you reach closer to your uniform rather easily. So Chinmay, not taking much time, if you can briefly tell everyone about yourself, and then we'll get back to certain questions that Yeah. So, I have for you. first of all, sir, thank you So for your over to kind you. words and Jai Hind, everyone. So, so my name is Chinmay, as sir rightly mentioned. I am an ex-OTA cadet. So, I joined the SSC 116 batch, which started in October. And due to some personal reasons, I had to unfortunately withdraw after a few months. So, right now, I'm again with you all in the circle of SSB and everything. But apart from that, basically, it took me 7 attempts to get recommended. And I've been following Sir and, of course, Bijay Sir and some other Instagram pages and also YouTube, as every SSB aspirant does. And the thing which I had observed was there is not much information about medicals. And this started making rounds in my mind even more when I went to OTA. किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि पहले क्या करना चाहिए या देयर इज अ फेयर बिट ऑफ आइडिया बट many over there also, even my course-mates, they were not exactly able to know कि क्या करना चाहिए था, especially as a civilian. So I have a completely civilian background. तो जो भी मैंने सीखा है फौज के बारे में सर से ही सीखा है और विजय सर से और ऐसे ही सीखा है सोशल मीडिया से। तो वहां पे जाके जब तुम जाते हो पहले कुछ दिन तो ठीक है, चलो हनीमून पीरियड तो निकल जाता है, बढ़िया मजा आता है। फिर उसके बाद जब एक एक चीज शुरू होने लगती है तो आई ऑब्जर्व्ड एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा भी एक कोर्समेट रिसेंटली ही विथड्रू बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के साथ होता है, पर अगर 10% लोगों के साथ भी होता है एंड इफ वी कैन अवॉइड दैट देन आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। आई डोंट वांट कि फोर्स डीवीएस का कोई भी बच्चा या फिर हमारे कांटेक्ट में कोई भी जो आता है उसको मेडिकल रीजंस की वजह से विड्रॉ करना पड़ जाए। अगर वो जा ही नहीं पाया तो दैट इज समथिंग अनफॉर्चुनेट, नॉट इन आवर हैंड। पर मैं ये नहीं चाहता कि हम उसको ऐसा कुछ बता दे जिससे अगर ही और शी कैन अवॉइड दोज मेडिकल प्रॉब्लम्स विच यू फेस इन ओटीए। उसके पहले भी पता है लोगों को, पर अंदर जाके क्या ज्यादा पता नहीं है। सो yeah, this is basically what my agenda was for this session. Okay, so Piyush sir is here. Yes, Colonel Ashutosh sir. Sharma's brother. We all know Colonel Ashutosh Sharma. And sir is Correct. mentioning that Ashutosh sir was also from OTA. Sir, we all know the history of sir, and we are grateful that you could spare time to be with us. And thank you so much for coming here. And coming back to Chinmay, your point that a lot of people are not aware of how and what to do once they reach the academy.
ठीक है। और अभी बहुत सारे लोगों के मैं आप तो बात कर रहे थे तो आपने शायद कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे। हाय प्राजिता। सो अनदर ब्रेव गर्ल इज हियर, मेजर आचार्य, Mahavir Chakra, Tololing fight. His daughter Aparajita is here with us. Aparajita, we all salute you, and I have personally met you a couple of times, and trust you me, I am, as I said, the first time, as I said the second time, you are fit for life. You know, the kind of fighting spirit you have, I have very rarely seen that in very many girls. So kudos to you. So Chinmay, coming back to the point, you know, आप जब बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे आपसे। मुझे सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की, और एकेडमी तक आप पहुंचे, ये सफर थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताएं। एज आई मेंशन्ड माय नेम, वो तो शायद अब तक पता चल गया होगा। सो आई एम चिन्मय एंड आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। सो बेसिकली आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम एयरफोर्स स्कूल। मैं सिविलियन हूँ, मैंने बोला था, बट द थिंग इज कि फॉर्चुनेटली आई गॉट एडमिशन इन एयरफोर्स स्कूल। देन देयर आई वाज स्टिल 12th स्टैंडर्ड। आफ्टर देन आई वेंट टू मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी। वहां से आई डिड माय कंप्यूटर इंजीनियरिंग, and after that then I was into corporates. I was working with L&T for a few months. Then after that I took up teaching as a part-time job, I would say, या फिर hobby, जो भी कहो. Then during that I was preparing for my SSB and all the written exams, CDS, FCAT, CAPF, and the first SSB which I cracked, मतलब अभी तक तो the only one, it was in SSB Kapurthala. So I got recommended from SSB Kapurthala. That was my 7th attempt. उसके पहले I was screened out 4 times and conference out twice. So in my 7th attempt I got recommended, and that was through CDS entry itself, non-tech entry. So I had technical entries also, but I got recommended through the non-technical entry, and then I landed up in OTA on 30th September 2022, last year. So that is when my OTA journey started. So I think that is about my educational background and how it took me 7 attempts basically. So yeah, that is about SSB. Okay. I think out of all your attempts and out of your educational background and your journey to OTA, one thing that I very strongly want to tell everybody who's watching this and who's an aspirant and who wants to get into the academy, that it took him 4 screen out. कई बार मैंने ये लोगों को सुना है कि एक बार स्क्रीन आउट हो गया, 2 बार स्क्रीन आउट हो गया, तो उसके बाद लोग अपना हौसला हार जाते हैं। बात समझने की ये है कि आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से जब आप एसएसबी में जाते हो तो आप साइकोलॉजिकली उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते हो। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई बच्चा रिकमेंड हो गया, मेरिट आउट हो गया, और अगली बार जब गया तो वहां से वो स्क्रीन आउट हो गया, राइट। सो द पॉइंट, जीत और हार के बीच में कई बार बस प्रयास का फासला होता है। इफ यू बी एट इट, इफ यू आर कंसिस्टेंट एट इट, sooner or later you will crack it. Yes, so screen out, when it comes to screen out, I'll tell one story of mine. मतलब शायद if someone resonates with it. तो this is about my I think 3rd या 4th attempt, exactly मुझे याद नहीं है, I think 3rd attempt. मेरा flying का last attempt था वो। my first aim was to get into flying. अभी तो I'm over age for that, but my first aim was to get into flying, Air Force में जाना था। तो basically my last flying attempt, and there were only 55 people who had reported. CDS entry थी, AFA में वैसे ही कम लोग आते हैं, और वही मेरा एम था कि CDS क्रैक करेंगे, FCAT से बेटर है, एंट्री अच्छी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो सारे कैलकुलेशंस माइंड में मैं लेकर गया। 55 लोग मिले वहां पर, तो खुश हो गया कि चलो 55 में तो स्क्रीनिंग हो ही जाएंगे, एंड 33 people got screened in, और मैं बाकी 22 में था। So basically 60% was the screening rate. वहां पे मैं screen out हो गया, and I had like उस दिन that was the first time when I felt like crying. मतलब I didn't cry of course वहां पे to maintain the decorum, but first time ऐसा लगा मुझे कि यार am I in the correct have I chosen the correct career, कि हो भी सकते हैं क्या recommend, like 55 में 33 में नहीं आ पाए तो 200-300 जहाँ पे टेक्निकल एंट्री आती है वो तो छोड़ ही दो, जाना ही बेकार है टाइप्स। बट समहाउ फिर एंट्री मिस नहीं करनी थी, तो नेक्स्ट टाइम सितंबर में 1 मंथ में ही आई वेंट इनटू माय
टेक्निकल एंट्री, वहां पे 230 का रिपोर्टिंग था, 22 गॉट स्क्रीन इन, एंड उसमें आई वाज वन ऑफ द 22। तो मतलब वहां पे जो 22 स्क्रीन आउट्स थे उनमें भी मैं था, और जो 22 स्क्रीन इन थे वहां पर भी मैं था। तो वो रेशियो वगैरह वो सारी चीजें फिर तब से मैंने माइंड से निकाल दी कि इतने रेशियो में हुए, उतने रेशियो में हुए एंड ऑल। तो स्क्रीनिंग का तो वही है, आई मीन इफ समवन फील्स की इवन आफ्टर कॉन्फ्रेंस आउट, इफ समवन फील्स की शायद आई एम नॉट फिट फॉर द प्रोफेशन, तो द बेस्ट थिंग इज कि गिव योरसेल्फ सम टाइम, सोचो ही मत उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सोचो कि हाँ मैं तो बेस्ट हूँ, पर ये भी मत सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ भी मत सोचो, इवन इफ यू आर न्यूट्रल इट्स फाइन, समटाइम्स इट्स फाइन टू बी न्यूट्रल, बट डोंट बी नेगेटिव अबाउट इट। दैट्स द ओनली थिंग आई फील व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स। तो जैसे सर ने कहा कि जीत तो मिल जाती है, पर तब तक जो प्रोसेस है उस पे यू हैव टू फोकस, ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। एक चीज, बहुत सारे सवालों को मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। आई वुड वांट many of you to stop working in a direction where many of you are thinking. As Chinmay has already told that the reason was personal, so I don't think it's prudent for us, or it's we should be asking what was the reason. But what is rather important for me to tell you guys is that it's not that he's not trying to go back there. Chinmay is again trying, and if Yes, everything sir. goes well, very soon we will Very soon. find him in academy again. Am I right, Chinmay? Yeah. So exactly. All the best, and we all would want to see you in academy very soon, and we would want Right. Thank you, sir. you to be wearing the uniform soonest possible. So, Chinmay, what was your observation जब आप academy में पहुंचे, और आप अभी आपने बताया कि आपका कोई coursemate भी था, Right. unfortunately he also had to withdraw from the academy because of medical reasons. तो जब आप वहां पे गए, आपने वहां पे जो समय बिताया, उस दौरान आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी जिसके बारे में आप, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनमें से लोग या तो एकेडमी जाने वाले हैं या एस्पायरिंग हैं, वो एकेडमी जाएंगे। लार्जली आई एम अज्यूमिंग दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस would be either aspiring to be there, some would have already cracked it and will be there in some time. तो वो क्या चीजें हैं जो आपने ऑब्जर्व की जिसके लिए लोगों को केयरफुल रहना चाहिए? वो केयरफुल रहने में उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ऑल द बेस्ट वगैरह कह रहे हैं, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू एवरीवन। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ मेडिकल्स, कि एकेडमी में जाने के बाद क्या करना चाहिए, पहले क्या कर सकते हैं, तो स्पेशली जो रिकमेंडेड है अभी, आई थिंक उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा इसका। और जो नहीं है वो हो जाएंगे ना बाद में, उतना कॉन्फिडेंस है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। सो बेसिकली सबसे ज्यादा, एक तो इफ यू आर गोइंग टू ओटीएच चेन्नई, तो सबसे पहला चैलेंज होता है वेदर। मतलब अगर वहां पे तुमको रहना भी है तो भी इट्स अ चैलेंज। ट्रेनिंग तो चलो बाद में आती है, पर वहां पे पहले इतना ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, ऊपर से ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो लॉट, यू स्वेट आउट अ लॉट, तो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अभी होता है क्या है कि इवन इफ यू ड्रिंक 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर तो भी कम पड़ जाता है वहां पे, और हम 6-7 लीटर सोचते भी नहीं है, लाइक सिविल लाइफ में हार्डली 3 लीटर्स हम पीते हैं, एंड दैट इज इनफ ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अब एकेडमी में जाके तो तुम पियोगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी, बट बहुत बार क्या होता है कि जाने से पहले ही जो हमारा वाटर कंटेंट होता है बॉडी में, दैट इज वेरी लेस, और वहां जाकर तो और कम होना ही है, तुम कितना भी पियो वहां पे कम ही पड़ने वाला है, और तुमको 10-11 लीटर पी पाओ उतना तो होगा नहीं ऑनेस्टली। तो इन ऑल दैट क्या होता है, अगर तुम्हारा वाटर कंटेंट पहले से ही कम है बॉडी में, अगर तुम एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते हो तो नेचुरल है, तुम डेस्क जॉब है, तुम्हारा ध्यान नहीं है इन सब चीजों पे, तो योर डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होगा तुमको वहां पे, एंड विच इज अ मेजर कॉज फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तुमको जो भी क्रैम्प्स आएंगे, जो भी चीजें वहां पे होंगी, जो दर्द होगा, वो सारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी इज द रीजन। और वो पता नहीं चलता, हमको नहीं पता ना, अगर पेन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं हाँ यहाँ पे लगा है, खरोच आई है, खून आ रहा है, पर पानी कम है ये कैसे पता चलेगा? बॉडी में पानी कम है कौन बताएगा? नहीं पता चलता वो। अब जिस दिन चक्कर आके गिरोगे उस दिन का वेट तो करना है नहीं। तो कीप ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तुम्हारे नॉर्मल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब कैसे पानी पीना है, क्या पीना है, वो भी बहुत बड़ा साइंस है, तो वो देख लेना, कहीं भी मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, हाउ मच यू एक्सरसाइज, उस सब पे। तो सबसे पहला पॉइंट तो है पानी पियो ठीक से। और तुमको लगेगा ये क्या
ट्रिवियल है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू गो इन द एकेडमी यू विल रियलाइज दिस, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू ओटीएच चेन्नई. सबसे अभी ज्वाइनिंग रिसेंट उसी की है ना, अप्रैल में एक बैच ज्वाइन करेगा एसएससी 117. तो जो रिकमेंडेड बंदे हैं उनको मैं बोलूंगा प्लीज पानी पियो, वरना आई हैव अ लॉट ऑफ कोर्समेट्स ओवर देयर, उनको मैं बताऊंगा तुम्हारा नाम, वो स्पेशल रगड़ा देंगे तुमको. ओटीए में पानी पीने के लिए रगड़ा मिलता है, ये तुमको पता चल जाएगा जब तुम जाओगे. हाँ. this, this is where I would want to tell you guys something. जैसे हमारे बहुत सारी mythological beliefs हैं, चाहे वो दिवाली के आसपास हो या दशहरे के आसपास हो, हमें ना फोर्सिबली हम अपने घरों को साफ करते हैं और हमें लगता है कि ये त्योहार आ रहा है, इस वजह से हमारे घरों में साफ सफाई हो रही है. वो पहले से एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है कि आपके आसपास साफ सफाई हो तो जितने भी त्योहार होते हैं उसमें बहुत सारी रिचुअल्स उसी तरीके से मनाई जाती हैं. सिमिलरली आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि ओटीए में तो पानी पिला पिला के मार डालते हैं. तो लेट me take that point here that Chinmay just made, that he has a lot of course mates who are there in OTA and he will tell them to give you guys ragda with pani. Actually ये वहां पे ये रगड़ा इसलिए भी ज्यादा फेमस है क्योंकि कहीं पे तो वो आपको रगड़ा लगता है और आप उल्टियां मारते हो, फ्रंट रोल बैक रोल सब कुछ मारते हो, बट ट्रस्ट यू मी देयर इज अ वेरी नोबल कॉज बिहाइंड इट. एक्चुअली इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर देयर. अगर खुद से नहीं पियोगे तो भले आपको रगड़े के तौर में पिलाया जाएगा बट आपको पानी तो पिलाया ही जाएगा. हाइड्रेशन परेड भी होती है वहां पे, Actually, मतलब we can परेड move to जैसे the- हम नॉर्मल स्कूल में जाते पीरियड कहते थे, तो परेड कहते हैं हर चीज को. तो हाइड्रेशन परेड भी होती है और ऑफिशियली भी होती है, और अनऑफिशियली कैसे होती है वो तुम जाके यू विल सी, वो देख लो. अब हर चीज तो बताएंगे तो एक्साइटमेंट क्या रहेगा. तो पानी का रगड़ा कैसे मिलता है वो तुमको मिल जाएगा वहां पे देखने को, पर पियो अच्छे से. लाइक डोंट गो डिहाइड्रेटेड ओवर देयर. वहां जाके होना ही है तो पहले से मत जाओ. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, तुम्हारे मतलब वॉट एवर एक्सरसाइजेस यू आर डूइंग ना, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ मच योर लेग्स कैन टेक. देखो एक बात ये भी बोलते हैं ना, एकेडमी पूरी तुम्हारे पैरों पर है. तुम्हारे पैर जितने स्ट्रांग है उतना वहां पर तुम्हें फायदा होगा. सो और पैर स्ट्रांग करना मतलब ये नहीं कि जिम में गए और एकदम ही कुछ 100-200 किलो वो कुछ तो करता है लेग प्रेस वगैरह, तो उससे तुमने पैर स्ट्रांग बना लिए एकदम ही, वैसा नहीं. What I mean to say is the most common problem in academy, yes, the most common injury is runner's knee. अभी जो लोग रनिंग करते हैं उनको पता होगा ये क्या होता है, जो लोग नहीं करते उनको थोड़ा सा हल्का आइडिया दूंगा. वैसे साइंटिफिक तुम गूगल कर सकते हो. बट रनर्स नी क्या होता है कि व्हेन यू रन अ लॉट तो तुम्हारे घुटनों में एक तो कार्टिलेज वगैरह जो भी होता है, तो कार्टिलेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कार्टिलेज डैमेज हो सकता है. या फिर अगर जिनको फ्लैट फुट वगैरह है या नियर टू फ्लैट है उनका जिनका फुट, तो या फिर गलत रनिंग टेक्निक से भी वो होता है, तो तुम्हारे नीज में पेन शुरू होने लगता है. ये सबसे कॉमन इंजरी है एकेडमी में, और ये स्टार्टिंग के 2-3 हफ्तों में शुरू होती है, चली भी जाती है बाद में, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग. तो पहले अगर तुम रिकमेंडेड हो तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चेक करो कि क्या तुम उस चीज के लिए वल्नरेबल हो. अगर तुम रनर्स लीग के लिए वल्नरेबल हो तो वर्क अपॉन इट, प्लीज वर्क अपॉन इट, बिकॉज आई डोंट वांट कि उसकी वजह से कोई बाहर है. बहुत कॉमन है, जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब ज्यादा क्रॉस कंट्री के लिए भागते हैं लोग तब उनको पता चलता है, या फिर जो जोश रन में जाते हैं तब पता चलता है, जब बहुत ज्यादा लंबी रनिंग हो जाती है ना तब पता चलता है. और वहां पे तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ चलो आज दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, वो तो होने नहीं वाला. तो डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल गेट टू एक्सपीरियंस अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ थिंग्स. जो होगा वो होगा, और वो इम्पोर्टेंट है. दैट इज हाउ इट इज डिजाइन. सालों से लोग करते आ रहे हैं और तुम्हें भी वही करना है. तो मर नहीं जाता कोई, पर दिक्कत ये आती है कि जिंदा रह के इतनी तकलीफ होती है तुमको कि लगता है कि भाई या तो मतलब वो तुमको पता चल जाएगा क्या लगता है. बट द थिंग इज कि इफ चेक वंस इफ यू आर वल्नरेबल टू दैट. अगर तुम हो तो डेवलप करो अपने पैरों को, बिकॉज रनिंग इज मतलब फौज रनिंग पे चलती है यार. एकेडमी में ट्रेनिंग में भी बहुत रनिंग है, कहाँ कहाँ पे है क्यों है पता चल जाएगा तुमको व्हेन यू गो. बट हर जगह तुम रूम से बाहर स्टेप रखोगे वहीं से तुमको भागना शुरू करना है जब तक वापस नहीं आ जाते, और तुम वापस नहीं आते पूरे दिन भर बाहर ही हो. तो बेसिकली दैट इज वन थिंग. तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच आई फील. वन इज हाइड्रेशन एंड अनदर इज योर लेग्स. और लेग्स का बेस्ट है रनिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, उससे पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज है स्विमिंग, तो बेस्ट एक्सरसाइज है. तो अपना लंग्स को स्ट्रॉन्ग करो बेसिकली, क्योंकि उसी पे तुम्हारा रनिंग क्या है, आधा पैर है और बाकी ऑफ कोर्स
इफ यू फॉलो सर एंड विजय सर एंड बाकी जो भी पेजेस है, तो यू विल गेट टू नो द टेक्निकलिटीज ऑल्सो, उन पे मैं नहीं जाऊंगा, बट इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। और ये मत सोचो कि रिकमेंड होने के बाद सोचेंगे, ठीक है? बहुत लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में हम लोग थोड़ा भी 10% भी हम एक्सरसाइज नहीं करते जो एक्चुअली ओटी में होता है, तो ये दिक्कत बहुत आती है। तो नया, ऐसा नहीं है कि ये सब करके जाओगे तो वहां पे तुम्हारी जिंदगी चिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पर एटलीस्ट बाकियों से बेटर होगी और तुम इंजरी प्रोन नहीं रहोगे। तो ये ध्यान रखो कि यू आर नॉट इंजरी प्रोन व्हेन यू गो टू ओटीए। एंड थिंग्स विच यू कैन कीप इन माइंड इज, वन, एज आई सेड, डाइट संभालो, डाइट में हाइड्रेशन पे ज्यादा फोकस करो, एक्सरसाइज वेल, उस एक्सरसाइज में ये चेक करो कि जो जो एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस तुम कर सकते हो ट्राई कर लो पहले, टू चेक कि इफ यू आर वल्नरेबल और नॉट। इतना भी मत कर लेना कि तुम हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठ जाओ, ये नहीं, पर इतना चेक करो कि वल्नरेबल हो कि नहीं तुम्हें पता चले। गो फॉर डिस्टेंस रनिंग करो या वॉट एवर, जो भी यू नो योर बॉडी द बेस्ट। तो ट्राई टू जज योर बॉडी, कोई और करे उससे अच्छा तुम ही कर लो। एकेडमी जाके कोई और तुमको बताए उससे बेटर है तुम खुद ही अपने आप को थोड़ी तकलीफ दो, ताकि वहां पे थोड़ी कम तकलीफ हो, क्योंकि यहाँ पे रह के वो तकलीफ सहना तुम्हारे पास ऑप्शन है, वहां पे ऑप्शन नहीं है, वहां पे तुमको करना ही पड़ेगा जो भी है। और यही रीजन होता है, मेरे दोस्त का भी वही हुआ, आई वोंट टेक हिज नेम, बट उसके साथ वही हुआ। ही हैड सम बैक इंजरीज बिफोर ही जॉइंड ओटीए एंड ही वाज नॉट नोइंग कि वो पूरा हील हुआ नहीं है। तो उसको एक टाइम पे इट वाज लाइक ही वाज नॉट एबल टू वॉक, ही वाज नॉट एबल टू रन, और उसको दर्द नहीं हो रहा था, बट व्हेन ही डिड द एमआरआई अगेन तो पता चला 4 इंजरीज और बढ़ गई है उसको बैक में, विच ही वाज नॉट अवेयर ऑफ। होता क्या है वही नहीं पता था, तो कैसे चेक करेगा? तो चेक ऑल दीज थिंग्स, तुम पहले ही देख लो क्या क्या चीज के लिए तुम वल्नरेबल हो, और उनको अगर तुम पहले ही सॉर्ट आउट कर सकते हो देन दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड इफ यू कांट सॉर्ट आउट देन दैट्स योर कॉल इफ यू हैव टू स्टिल कंटिन्यू और नॉट। बट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, टेक केयर ऑफ द डाइट एंड द एक्सरसाइजेस विच यू आर डूइंग, और पहले से ही करो, रेकमेंड होने के पहले से ही करो, ये नहीं कि हम बाद में देख लेंगे, टाइम नहीं मिलता, फिर एंजॉयमेंट में चला जाता है पूरा टाइम। Exactly. So I think the point that Chinmay just made here, there are दो तरीके का, आई वुडेंट कॉल इट पनिशमेंट, बट एकेडमी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. वन इज रूटीन and one is ragda. Now it's a different thing. The ragda is also part of routine, right? But the point that Chinmay is making is कि जितनी चीजें आपकी रूटीन की हैं, आप उसके लिए अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करके जा सकते हो. एकेडमी पैरों से चलती है, देयर इज जस्ट नो डाउट अबाउट इट. रिस्ट्रिक्शन से लेके, साइकिल खराब होने से लेके, सीनियर के टच एंड बैक से लेके, लेक्चर के बीच में पनिशमेंट, 90% ऑफ द पनिशमेंट इज ऑन योर फुट. नाउ another thing other than athlete's knee, there is another aspect which is very prevalent in academy, and that is called stress fracture. Stress fracture is nothing but when your body weight is little more than what you can take. और अभी आप जिस एनवायरनमेंट में हैं वहां पे आपके पास बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग शूज हैं, रनिंग शूज हैं. जब आप बाहर दौड़ते हो, जब आप एकेडमी में जाते हो और वहां पे जब आपको आपके डीएम्स में दौड़ना पड़ता है, तो दैट इज नॉट वेरी सूदिंग टू योर हील, योर काफ, योर नी, योर शिन. तो खुद को बेहतर प्रिपेयर करके अगर आप जाओगे तो आपका जितना रूटीन की चीजें हैं उसमें आप कंफर्टेबल रहोगे. ना अगर आप अपने रूटीन की चीजों में कंफर्टेबल रहोगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा. आपका स्ट्रेस कम होगा तो आप रगड़ा बहुत प्यार से लोगे. जैसा कि चिन्मय ने बोला, आप अपने आप को कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, nobody can save you from the F that you have to get there. कोई नहीं बचा सकता आपको, and that is designed. आपको मतलब वो प्रसाद मिलना ही मिलना है. So nobody can save you from that, but yes, you can go better prepared. Yes, Chinmay. Yes, so just to add on a few things, तो जैसे सर ने बोला ना कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो, no one can save you from the F and C. अब जो लोग जाएंगे उनको पता चल जाएगा क्या है ये दोनों चीजें. तो बात यह है कि जो जितना ज्यादा फिट होता है ना उसको उतना ज्यादा रगड़ा मिलता है. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फिट नहीं बनो, इसका बस इतना मतलब है कि दे आर जस्ट मेकिंग यू इवन मोर स्ट्रॉन्गर.
तुम्हारी जो भी लेवल है ना, उससे बस वो उस लेवल के हिसाब से रगड़ा देंगे, पर रगड़ा तो देंगे ही देंगे। वैसी बात है, सीनियर को पता होता है ना कि हु इज एट व्हाट लेवल। तो रगड़ा तो सबको मिलना है। एंड दैट्स द थिंग, इफ यू गो देयर वीक यू विल बिकम स्ट्रांग, बट इफ यू गो स्ट्रांग यू विल बिकम स्ट्रांगर। तो अब तुम सोच लो कि तुमको स्ट्रांग बनना है कि स्ट्रांगर बनना है। दैट्स द थिंग। तो एंड जैसे सर ने बोला कि व्हेन यू रन इन योर ड्रिल बूट्स में, जब तुम दौड़ते हो या फिर कॉम्बैट शूज में दौड़ते हो या फिर इवन जब तुम अपने फॉर्मल शूज में दौड़ते हो, तो दैट्स नॉट अ वेरी आइडियल थिंग टू डू साइंटिफिकली। हम सोचे तो, पर ऑफ कोर्स दैट्स नॉट हाउ यू हैव टू थिंक वंस यू आर देयर। तो पहले तो अपने माइंड से ये सारी चीजें निकाल देना कि हाँ एकदम मस्त, एक नाइकी या फिर वो सॉफ्ट कुशन वो जो भी होता है उसी सोल में दौड़ना है हमेशा वगैरह। हाँ, व्हेन यू आर नॉट देयर इन द एकेडमी, यहाँ पे यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, पर वहां पे वो सब चीजें नहीं होंगी। तो पहले से प्रिपेयर रहो उन चीजों के लिए कि रोड पे दौड़ना पड़ सकता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शूज में दौड़ना पड़ सकता है, हर टाइप के बूट्स में यू हैव टू रन फॉर अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स। तो ये सारी चीजें मेंटल भी बहुत होती है। मैंने एक बार एक सीनियर को पूछा था, दे हैड जस्ट कम फ्रॉम देयर रन बैक से आए थे, एंड दे हैड रन आई थिंक सम 40 किलोमीटर्स। तो आई आस्क्ड हिम कि 40 किलोमीटर्स तो आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ, मतलब 40 किलोमीटर्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना यार, मैंने दौड़ने का कभी सोचा भी नहीं इतना, तो हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज? आई आस्क्ड दैट सीनियर, तो ही सेड कि देखो यार, व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट 2-3 किलोमीटर्स यू हैव टू रन, उसके बाद तो तुम्हारा वो ना मसल मेमोरी टाइप्स बन जाती है, मतलब इतनी आदत हो जाती है, पैर अपने आप चलने लगते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता कि हाउ यू हैव कवर्ड दैट डिस्टेंस, पैर अपने आप चलने लगता है। उसके बाद सारा दिमाग का खेल है, क्योंकि एक बार तुमने उतना थ्रेशोल्ड, जो भी आप सबका अपना थ्रेशोल्ड है, तुमने एक बार वो थ्रेशोल्ड दौड़ लिया, उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड, क्योंकि पैरों को अब आदत हो चुकी है, अब पैर कुछ नहीं बात कर रहा, अब सिर्फ दिमाग का खेल है। तो दिमाग बोलेगा कि हाँ इतना बाकी है, या इतना दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर तुम दिमाग को पहले से ही वैसे आदत डाल दोगे, तो वहां पे तुमको वो चीजें तंग नहीं करेंगी। वरना फिर अगर 1 किलोमीटर भी दौड़ना है तो भी फिर दिमाग बोलेगा कि यार बस करो, 100 मीटर पहले रुक जाओ, या मकरा मारो एंड ऑल, और उसका कुछ फायदा होता नहीं है। मकरा जितना मारोगे तुम्हारा ही लॉस है, और जितना रगड़ा खाओगे तुम्हारा ही फायदा है। तो इट्स बेटर कि तुम एक अच्छी पोजीशन में जाके रगड़ा खाओ, ताकि तुम्हें इंजरी ना हो और तुम स्ट्रांग बनो। कंस्ट्रक्टिव रगड़ा अगर चाहिए तो मेक योर सेल्फ फिट फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम ठीक बन के नहीं जाओगे तो फिर तुमको डिस्ट्रक्टिव रगड़ा मिलेगा, एंड फिर तुम बोलोगे मेरी किस्मत खराब है एंड ऑल दो स्टफ। पर ऐसा नहीं होता है। सो एंड ये स्ट्रेस फैक्टर इज ऑल्सो बिग थिंग, और वो इसीलिए होता है, एक तो ओवरवेट, बिकॉज अगर तुमको बहुत सारी चीजें पैरों से करनी है तो तुम्हारे वेट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो इफ यू कीप नोट ऑफ योर वेट, तो एज आई सेड ना, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान दो अपने, पानी ज्यादा पियो, और अगर अच्छी डाइट रखोगे तो वेट वैसे ही नहीं बढ़ेगा, और बढ़ा है तो कम भी हो जाएगा। तो वेट का ध्यान रखो, बिकॉज मैंने देखे थे बहुत जो भी ओवरवेट थे, मतलब वहां पे ऐसे जब स्क्रीनिंग हो रही थी हमारी, तो जो ओवरवेट थे उनको अलग से उस्ताद ने उनको अलग से निकाला, और उनको अलग अलग टास्क दिए थे, तो उनका अलग से रगड़ा हुआ था। तो अगर ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो अपने सिविल लाइफ में ही खुद को रगड़ा दे दो, ताकि वहां पे वो सारा स्पेशल रगड़ा तुमको ना मिले, क्योंकि वेट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तुम्हारे नी पे, और भी जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर का सबसे बड़ा रीजन इज ओवरवेट। और अगेन एक को उसमें नाम नहीं लूंगा, पर उनकी याद आ गई कि बिकॉज ऑफ वेट उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, और उनको स्टार्टिंग के सेकंड सेकंड वीक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था, इतना ज्यादा वेट वहां पे मैटर करता है। तो इफ यू आर ओवर वेट, तो प्लीज प्लीज ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, एटलीस्ट तुम अपने बीएमआई के हिसाब से, जो भी है एटलीस्ट उस कैटेगरी में तो आ जाओ कि फिट रहो तुम। और जितना तुम्हारा फिट है उससे थोड़ा केजी कम रखोगे तो बेटर ही है इनफैक्ट। अंडरवेट मत हो जाना, पर एटलीस्ट बी टुवर्ड्स द व्हाट आई से लोअर, क्या कहते हैं उसको, जो लोअर थ्रेशोल्ड है ना, उसके पास रहो। अपर थ्रेशोल्ड के पास अंदर आके ये नहीं कि हाँ मेरा बीएमआई तो 25 के नीचे आ गया, अब मैं फिट हूँ, ऐसा मत करो। जो भी तुम्हारा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट के जितना पास रहोगे उतना बेटर है। अंडरवेट भी मत हो जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पर हाँ वो वेट पे बहुत ध्यान दो। स्ट्रेस फ्रैक्चर से बचना है तो वेट पे ध्यान दो, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
And I think another very important aspect in academy is कि आपको ना Exactly. वहाँ पे No rest, no recovery time recovery. नहीं है आपके लिए, especially in first term. So ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया तो आप कल डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा 3 दिन आराम कर लो, आप 3 दिन आराम करोगे, उसके बाद फिर अगले दिन जाओगे तो यू विल टेक इट इजी एंड गेट बैक इनटू ग्रेड. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. आप जैसे हो वैसे ही आपको चलते रहना है. सो आपकी प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये है कि आप ऐसे बन के ही जाओ कि वहां सस्टेन कर जाओ. दैट्स स्ट्रेस फैक्टर का मतलब है you need at least 15 days. So there are only two possibilities. If you are doing rest everything fine, तो कहीं पे तुम्हारी मेरिट में वो रिफ्लेक्ट करेगा. मतलब इट्स नॉट वर्थ पिकिंग अप एन इंजरी व्हेन यू रीच देयर. और सबसे वर्थलेस तो ये है नॉन इंजरी उठाना. जैसे जो चीजें अभी बताई जा रही हैं, ओवरवेट होने की वजह से, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आप अच्छा लेके वहां नहीं जा रहे हो उसकी वजह से, बेसिक कोर स्ट्रेंथ ना होने की वजह से, आपको पता है कि स्विमिंग इज अ मस्ट, आप वहां पे जाओ और वीक स्विमर बन के वो चेन्नई की धूप में पत्थरों पे जब स्विंग उसके बगल में रोल कराते हैं ना लोग, मतलब ये सुन के बहुत फिल्मी लगेगा, मतलब लोगों की पीठ जमीन पे चिपक के रह जाती है और बंदा आगे रोल करके चला जाता है. दैट इज द काइंड ऑफ हीट यू आर टॉकिंग अबाउट इन द मंथ ऑफ जून जुलाई. आप अपनी क्लास करके आते हो और सीनियर आपको बुला के बैरक्स के बीच में ना खाली खड़ा करके ऊपर बोल देगा सूरज को देखो. 10 मिनट बाद 2 बंदे वहां जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं. ये कुछ भी एग्जैजरेटेड इसमें से नहीं है. दिस इज द सिनेरियो एवरी डे इन एवरी कंपनी. हर रोज का काम है ये. तो जो बातें चिन्मय बता रहे हैं आपको उसका सिर्फ ये मतलब है, द ओनली रीजन व्हाई वी वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड पुट मोर एम्फेसिस ऑन दीज थिंग्स इज बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस दैट हम इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम नहीं चाहते कि इन सो टू से स्टूपिड रीजंस की वजह से आपको वहां पे जाके 3 से 4 दिन का ब्रेक लेना पड़े. यहाँ पे 3 से 4 दिन बोलना बहुत छोटा लग रहा है, बट बिलीव यू मी, वंस यू आर इन एकेडमी, 4 दिन यू जस्ट कांट अफोर्ड. इम्पॉसिबल है कि आप 4 दिन का ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर सब कुछ आपके लिए ठीक हो. करेक्ट, एज सर सेड ना, वहां पे तुमको ना रेस्ट मिलेगी ना रिकवरी का टाइम मिलेगा. और जो हम बोलते हैं ना कि डाइट अच्छा होगा, रेस्ट मिलेगी, रिकवरी होगी तो मसल्स बिल्ड होंगे एंड ऑल, ये सारी चीजें वहां जाके भूल जाओ. तो यहाँ वहां पर वो सब नहीं मिलेगा. एंड वहां पर तुम्हें रात का रेस्ट छोड़ो, दिन में भी रेस्ट नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कि 2 परेड के बीच में आधा घंटा मिल गया, एक पावर नैप ले लिया, वो भी नहीं मिलेगा. सो एज सर राइटली सेड ना, स्विमिंग तुमको पता है अगर स्विमिंग इज अ रिक्वायरमेंट तो देन डू इट ना. कितना टाइम लगता है यार, मैं 3 हफ्ते में सीख गया था स्विमिंग. और सीख गया था एज इन प्रॉपर जो एकेडमी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. ये नहीं कि हाथ पैर मार के जिंदा बचेंगे, वो वाला नहीं. और बहुत मुझे कुछ नहीं आता था यार. मैं आई वाज लाइक अ डेड सिंकर बिफोर. नॉट ओटीए जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही सीख के गया था. तो व्हेन आई हैड स्टार्टेड ना, आई वाज अ डेड सिंकर. बट मैं 3 हफ्तों में सीख गया था. और वहां जाकर फिर मुझे उसका फायदा पता चला, क्योंकि वहां पे जिनको स्विमिंग नहीं आता है ना, उनको बार बार वही सब चलता है उनके दिमाग में. उनको स्विमिंग क्लब में डालने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है. दोपहर को धूप में तुमको स्विमिंग करनी है वहां पे. तो यहाँ पे सिविल लाइफ में यू फील कि अच्छे से जाएंगे, स्ट्रेस रिलीफ वाली एक्सरसाइज है एंड ऑल, वहां पे और बढ़ जाता है, और ज्यादा थकान होती है स्विमिंग से, बिकॉज स्विमिंग इज वेरी टायरिंग, सबको पता है. और अगर तुमको नहीं आती है फिर वहां जाके देख लेना क्या हो दे टीच. एंड ट्रस्ट मी, you don't want to learn swimming from army ustads. Trust me, सच में you would, that is the... Yeah. So week swimming classes. So let me tell you one mool mantra, the biggest truth about swimming, week swimming classes. In week swimmers class, correct, you do everything correct, but correct. swimming. In fact, that is the thing of every club in OTA. उस क्लब में तुम उस क्लब के अलावा सब चीजें करते हो. द सेम थिंग रॉक क्लाइंबिंग के बारे में भी यही कहते हैं, यू डू एवरीथिंग बट रॉक क्लाइंबिंग इन दैट क्लब. तो बट दैट अगेन डिमांड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल कैपेबिलिटीज इफ यू गो इन रॉक क्लाइंबिंग क्लब या ऐसा कुछ में जो भी जाते हो. तो वही बात है कि अगर तुमको पता है स्विमिंग करनी है 50 मीटर तो सीख के जाओ ना. 50 मीटर इज नॉट अ बिग डील. अगर तुमको पहले से सीखना है तो सिर्फ उतना ही bare minimum सीख के जाओ. If you know that there's a lot of running involved, then make your legs according to it. Cardiovascular जो भी exercises है वो करो. Anti gravity exercises करो, because that will make your lungs strong. और एक
याद आई जब वेट की बात कर रहे थे, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फैटी लिवर. अब ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे फिट दिखने वाले बंदों में ये रीजन देखा अनफिट होने का मेडिकल्स में. फैटी लिवर करके उनको चीज थी. अब फैटी लिवर क्या होता है कि व्हेन, एक तो खासकर आजकल के लाइफस्टाइल में, व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, ऑयली खाते हो बहुत ज्यादा, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैटी लिवर विच यू डेवलप. और उसके लिए देन यू हैव टू अगेन गो थ्रू ऑल द डिटॉक्स प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड ऑल. और 42 डेज के अंदर इफ यू कम अंडर द प्रॉपर क्राइटेरिया, देन तुमको वो जो टीआर मिला है वो क्लियर हो जाएगा. पर क्यों लेना है फैटी लिवर? जब पता है तुमको कि जंक फूड खा के नुकसान है बॉडी को, तो मत खाओ. और अगर खाना भी है तो ऐसा खाओ कि जो तुम रिकवर कर सको उसको, भाग के या जो भी तुमको एक्सरसाइज करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट मेक श्योर दैट यू डोंट indulge into all this binge eating वगैरह जो भी है, जंक फूड, या you know what all things are not healthy. पता सबको होता है और कंट्रोल नहीं कर पाते. तो एकेडमी जाने के पहले फैटी लिवर से बचो, ओवरवेट मत होके जाना. क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट नो अबाउट समथिंग एंड यू डू समथिंग रॉन्ग, देन दैट्स अ मिस्टेक. बट इफ यू नो इट एंड देन यू डू इट रॉन्गली, देन दैट्स अ क्राइम. तो क्राइम मत करो यार प्लीज. अगर पता है तुमको कि हेल्थ की इश्यूज आ सकती है, तो अच्छा फिट बन के जाओ वहां पे. बिकॉज यू डोंट वांट टू बी द लास्ट मैन इन द कंपनी ना. कंपनी में एक चीज कहते हैं कि द कंपनी इज एज स्ट्रॉन्ग एज द लास्ट पर्सन, एज द वीकेस्ट लिंक. तो यू, आई एम श्योर यू डोंट वांट टू बी द वीकेस्ट लिंक इन द ऑफ द कंपनी. तो अगर तुमको नहीं चाहिए कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारी वजह से हारे, तो थोड़ा सा खुद को फिर उस लायक बना के जाओ पहले. very 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 important point. ऑल फॉर वन, करेक्ट. वन फॉर ऑल. वहां पे जाके कोई फन्ने का नहीं होता. और जब तक पूरी कंपनी किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं करती, तब तक कोई टास्क कंप्लीट नहीं माना जाता है. तो एकेडमी में जाने के बाद आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाई जाएगी कि आप अकेले में कुछ नहीं है. इट्स करेक्ट. कॉमन ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव अप्रोच. तो इस चीज को सिखाने के बहुत नायाब तरीके हैं एकेडमी में. एक बंदे को टारगेट किया जाएगा और उसके करेक्ट. पीछे बाकी सबको पेल दिया जाएगा. और ये अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया है. जब तक आप एकेडमी से निकल नहीं जाओगे, तब तक आपके साथ ये खेल होता रहेगा. फर्स्ट टर्म में मजबूरी लगेगी और सेकंड टर्म में मिर्जापुर की होने लगा तरह है. आप करेक्ट. कहोगे कि शुरू करेक्ट. मजबूरी में या किए थे, अब मजा आने लगा या है. इससे आप बच नहीं सकते. हाँ चिन्मय, आई थिंक you made some very 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 important points here, and if there is more to it, please add on, because this is really really going to help people who are about to get into the academy. And मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जिनको यहाँ पे नहीं होना करेक्ट. चाहिए. बट ठीक है, if you're यस. smart enough, तो you can be anywhere. I think a lot of people are asking about knock knees also. I can read the comments. यार देखो, knock knees, DNS, ACL सर्जरी, ये जो भी चीज है ना, दीज आर वेरी साइंटिफिक थिंग्स. ठीक है, तो आई थिंक अ डॉक्टर इज द बेस्ट वन हु कैन टेल यू ऑल दीज थिंग्स. अगर तुमको नॉक नीज लग रहा है, कैरिंग एंगल के बारे में मुझे इनफैक्ट परसों ही वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी अबाउट इट. तो ये जो भी चीज है ना, जो साइंटिफिक है, जो ऑन पेपर है, तो वो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट. किसी भी ऑर्थो के पास जाओ, आस्क हिम जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, उनके पास जाओ. देखो, सम थिंग्स यू कैन डू बिफोर हैंड. ब्लड टेस्ट वगैरह तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल है. बाकी खास कोई प्रॉब्लम आता नहीं, हीमोग्लोबिन की भी आती है कभी कभी, तो दैट दीज बेसिक टेस्ट यू कैन डू. ऑर्थो के पास जाना है तो जाओ, नॉकनीज देख लो, अपना फ्लैट फुट देख लो, कैरिंग एंगल देख लो, डीएनएस ईएनटी के पास जाओ, वो सब वहां पे यू कैन चेक. और वो जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर तुम हो कि नहीं, वो तुम्हें वहां पता चल जाएगा. तो यहाँ से मैं कैसे बताऊँ नॉकनीज है कि नहीं. अरे भाई, यहाँ जितने लड़के हैं, तुम लोगों ने ध्यान से सुना ना, उसने बोला ऑर्थो के पास जाओ. ऑर्थो बोला है उसने. सर मुझे तो सच में नहीं नहीं समझ में आया? चलो आई विल. अच्छा. उसमें एन मत लगाना. ठीक है. तो और भी टीथ
टीथ का यार, टीथ अलाइनमेंट और एक तुमको टूथ डीके है वगैरह, डेंटिस्ट के पास जाना। देखो यार, सी देर आर सम थिंग्स विच ओनली अ डॉक्टर कैन टेल यू। मैं तुमको वो सारी चीजें बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ। जब एग्जैक्ट वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात आती है ना, तो बेस्ट इज अ, इफ यू कैन कंसल्ट अ मेडिकल डॉक्टर, पहचान में तो बेस्ट थिंग है। उससे बेटर, उनसे बेटर किसी को नहीं पता है। पर अगर नहीं है तो फिर क्या करे, तो घर पे तो नहीं बैठ सकते, तो कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, आस्क देम दीज थिंग्स। किसी किसी को वो डेंटल पॉइंट्स का इश्यू होता है, वो डरने लग जाते हैं मेरा एक दांत नहीं है तो अनफिट हो जाऊंगा। क्या ऐसा नहीं होता है यार, दांतों की वजह से अगर सोल्जर्स मिस आउट करने लग गए तो हो गया ना फिर। ऐसा नहीं होता है। डेंटल पॉइंट्स करके एक चीज होती है, इफ यू हैव दोज मेनी डेंटल पॉइंट्स तो तुम होते हो अंदर। मेरा एक दोस्त है, उसका आधा दांत नहीं है ये वाला, बहुत ही फनी स्टोरी है। बट ही डजंट हैव वन टीथ, पर ही इज अभी पास आउट होंगे वो इन सम टाइम। तो डेंटल पॉइंट्स करके एक चीज होती है, टूथ डीके है तो वो ठीक भी हो जाता है। सो ऐसी चीजें, ऐसी चीजों के बारे में टेंशन मत लो, कंसल्ट अ डॉक्टर इज द बेस्ट वे। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट योर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, देन कंसल्ट अ डॉक्टर। जहां तक फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो देन दैट इज समथिंग विच वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर। डिफरेंस होता है फिजिकल मेडिकल में, जो डिफरेंस है उसको समझो पहले। आई स्टैंडर्ड्स अगेन यू कैन रेफर टू द पीडीएफ जो है। आई थिंक +-2.5 या 3.5 कुछ तो अलाउड होता है। मुझे चश्मा नहीं है तो एग्जैक्ट आई डोंट नो। आई थिंक इट्स +-3.5 दैट इज अलाउड। एंड CP2 लगता है इफ यू वांट टू गेट इनटू द आर्मी। अगर फ्लाइंग में जाना है तो CP1 चाहिए, और उसका कुछ कर नहीं सकते कलर ब्लाइंडनेस का। टैटू टैटू इज नॉट अलाउड, बट देर आर सम स्पेशल रीजंस जहाँ पे टैटू अलाउड है। दांत टेढ़े है तो चलता है क्या? अगेन एज आई सेड, डेंटल पॉइंट्स चेक कर लो अपने एक बार डेंटिस्ट के पास। उनको पूछ लो कि कितने हैं तुम्हारे डेंटल पॉइंट्स, बिकॉज मुझे नहीं पता कैसे दिखते हैं डेंटल पॉइंट्स, तो आई कैन टेल यू ऑनेस्टली। So I do DJ work when I go on live. So you will या see I keep pinning things which are humorous या sometimes and sometimes things which are लेजिक moodful अगेन देर आर things. सम स्टैंडर्ड्स। अगर लेजिक तुम करते हो तो उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर तुमको आना है, तभी यू आर अलाउड, वरना यू आर नॉट। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो लेजिक करके अंदर भी गए हैं, और जो नहीं भी जा पाए ऐसे भी देखे हैं। तो एक तो अभी ही इज एन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट है, उनका भी लेजिक उन्होंने किया था। ही इज माई कॉलेज फ्रेंड। तो चिनअप स्ट्रेंथ, चिनअप हाँ, चिनअप एंड टो टच, चिनअप एंड टो टच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एकेडमी। अगर तुम्हारा पीटी अच्छा है और तुम चिनअप टो टच कर पा रहे हो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। यू विल गेट ऑल द प्रिविलेजेस। सीनियर्स भी तभी इज्जत करेंगे जब तुम पीटी में अच्छा करो। तो चिनअप्स के लिए शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपनी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाओ, फोर आर्म स्ट्रॉन्ग करो। कहीं पे रोप वोप है तो रोप चढ़ लो, लटक जाओ बार पे, चिनअप्स ट्राई करो। टाइम लगता है चिनअप्स के लिए बहुत, अगर तुम पहले से नहीं कर सकते हो तो। मैं मुझे थोड़ा बहुत आता था चिनअप्स, तो जाके बहुत दिक्कत नहीं आई। एंड टो टच के लिए एज सर सेड ना, कोर स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो टो टचेस भी होंगे। और टो टचेस देख लेना प्लीज यूट्यूब पे क्या होता है। सिविल वाले टो टच और आर्मी के टो टच बहुत अलग है, तो प्लीज वो देख लेना है, वरना तुमको लगेगा मेरे से तो बहुत टो टच हो जाते और भी हैं। या बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहाँ पे होती है, वहाँ पे नीनी पे वहाँ पे टच नहीं होता है। तुमको So it may sound करेक्ट, a little absurd, एक्चुअली। but it's a very और ये सारी legit चीजें ना यूट्यूब पे जब सर्च concept. करोगे टो टच, तो सिर्फ टो टच मत करना, टो टच आर्मी स्टैंडर्ड ऐसे करना, सो दैट यू कैन, मतलब तुमको पता चलेगा एक्चुअल में क्या होता है। Ankit, I have pinned your question not because this is a very good question. I have pinned this question to tell everybody that don't ask such questions. अगर यहाँ पे पहुंच के जिस भी बंदे को ये डाउट है कि टैटू अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही And सुपरफिशियल लेवल I पे have है। already खुद answered that ढूंढो question. इसको जहां भी ढूंढना है I इसका जवाब। नो आई मीन सॉरी, यार एटलीस्ट पीडीएफ के ट्यूटोरियल क्वेश्चंस तो नहीं मत चल रहा पूछो है यहाँ यार, पे। पीडीएफ में तुमको मिल जाएगा नहीं ये सब। तो डोंट आस्क विथ व्हाट इज ऑलरेडी देयर आउट देयर। हाउ टू इंक्रीज स्टेमिना, बेस्ट एंटी ग्रेविटी जो भी एक्सरसाइजेस है, भागो पर इंक्लाइन पे भागो। इफ यू आर डूइंग स्विमिंग तो थोड़ी ज्यादा करो। साइकिलिंग करो, अगेन इंक्लाइन रोड्स पे साइकिलिंग करो।
and exactly notification में सब लिखा है. Someone is rightly coming. अब इससे पहले कि लोग तेरे को डॉक्टर बना दें इधर, ठीक है, आई थिंक if there is anything else that you want to share from your experience perspective, uh, let's talk about that, because these questions are endless, and this definitely gives me a very strong Correct. point that I should come live with somebody who's an army doctor. So there are two things that Chinmay very categorically mentioned. Medical or physical issues are very, very different. Any ex-army officer or an officer or somebody who's in the academy, he can at best guide you for your physical conditions, something which are normal, right? Anything, most of the questions that's off late I have seen here in this group are very, very medically oriented. और उसका जवाब देने के लिए अगर किसी चीज का जवाब हम लोगों के पास है भी, तो भी on an open platform it would not be good for us to suggest you something, because it may, you know, make a base for you to rely that this is what someone said. So we will not make a comment on that, and you should definitely visit a doctor who is certified, who is accredited to tell you Correct. the right thing. So आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ट्राई टू नो कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. पहले तो वो समझो कि क्लियर डिफरेंस क्या है बिटवीन दीज टू टर्म्स. ये सेम नहीं होता है. सिविलियंस पूछते हैं ऐसा, पर एटलीस्ट तुम मत पूछो कि फिजिकल और मेडिकल सेम नहीं होता है. तो फर्स्ट गेट टू नो अबाउट दोज थिंग्स. वंस यू नो जो भी हमने डिस्कस किया है, आई थिंक यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. वी विल टॉक अबाउट few more things in more detail as you ask questions, पर जो अभी चीजें बताई है, I think there is nothing else which comes to my mind as of now. But as I told you, दो तीन जो सबसे बेसिक चीजें है, एक तो हाइड्रेशन हो गया, ऊपर से then your legs, these injuries, vulnerable injuries जो भी है, try to avoid them. And as sir also mentioned, work on your these things. जो पैरों पे है, पैरों पे काम करो, कार्डियो पे काम करो, बिकॉज दैट इज समथिंग. वेट पे काम करो. सर ने सबसे अच्छी चीज जो बोली कि वेट पे काम करो, दैट इज समथिंग विच यू कैन वर्क ऑन. और उसके भी 1000 तरीके हैं यार. एवरीवन हैज देयर ओन वे. कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है, एंड नो वन इज द फिटेस्ट वन, टू बी ऑनेस्ट. सबका कुछ ना कुछ दिक्कत होती है. यू हैव टू नो पहले तो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर बॉडी टाइप. उसके हिसाब से काम करो. डोंट जस्ट अप्लाई सम स्पेसिफिक या फिर सम वेरी वेरी कॉमन जनरल थिंग्स कि इतना भागना है तो इतना भागना ही है रोज, या फिर जो भी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि उसने इतना भागा, मैं भी इतना भागूंगा. तुम कम भी भाग सकते हो, शायद क्या पता ज्यादा भी भाग सकते हो. तो अपनी अपनी बॉडी को जज करो और उस हिसाब से एक बेसिक लेवल बना के रखो, सो दैट तुम एटलीस्ट There is a reason. कार्तिक, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि एकेडमी जाओगे तो अपने आप ये बंद हो जाएगा, क्योंकि यार सोने के लिए टाइम निकालोगे तो you यू विल बी अ विनर. अब इन सब चीजों के लिए अगर इफ यू कैन फाइंड आउट टाइम, देन क्या ही बोलूं, यू आर द किंग लिटरली. लोग तुमसे यही पूछेंगे फिर जब तुम लाइव में आओगे ना कि कैसे टाइम निकालना है इन चीजों के लिए, कैसे मैनेज कर लेते हो. कैसे किया में ना कोई तो मैनेज कैसे कर लेते हो, कुछ तो ऐसा है. एग्जैक्टली. ओके, सो बहुत सारे लेजिट क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं. तो मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड दिस, दैट चिन्मय इज लाइव फ्रॉम फोर्स डीवीएस पेज. So another news that I want to tell you people is that Chinmay is going to help you guys out with a lot of other tutorials as well. Some of it will get uploaded on YouTube, and time to time we will request Chinmay to spare some time so that he can talk to you guys openly on Instagram the way we are doing today. आज ये ओपन प्लेटफॉर्म पे करना इसलिए जरूरी था ताकि मैं चाहता था कि आप सभी लोग चिन्मय को अच्छे से जान जाएं. आने वाले टाइम में शायद ये एक क्लोज्ड जूम सब्सक्राइब्ड स्पेस में होगा,
don't worry, it will be free for everyone. And what we want to do here is we want to bring more awareness through legit people who've been recent. Okay. एक और पॉइंट, जब हम लोगों की चिन्मय से बात हो रही थी तो चिन्मय ने हमें बताया था कि जिस समय लोग रेकमेंड होते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप लोगों को कोई राय देते हो और जब आप उस चीज से थोड़े काम डाउन होकर थोड़े दूर पहुंच जाते हो, तब जब आप राय देते हो तो उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है. क्योंकि जिस समय आप रिकमेंड हुए रहते हो उसमें आपको लगता है कि एवरीथिंग दैट यू से, एवरीथिंग दैट यू डू इज द परफेक्ट थिंग, और अपने को ऐसे करना है, ये करके दोस्त एकेडमी में पहुंचना होता है. बट आई थिंक when you know give yourself a little bit of time, when you think back, तब चिन्मय जैसे लोग जो 4 बार स्क्रीन आउट हुए हैं, 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा होराइजन होता है आप लोगों के लिए बातें समझाने के लिए, और कहाँ पे फेल हुए, कहाँ पे क्या किया इन्होंने कि जिसकी वजह से वो इवेंचुअली जाके रेकमेंड हुए. तो इन सारी चीजों को आप लोगों से हम लोग बार बार बात करते रहेंगे. आप फोर्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हो. चिन्मय को हम लोग छुपाना नहीं चाहते हैं. चिन्मय वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस इफ यू रीच आउट टू हिज पेज एज वेल. And I'm sure the feeling that I got after meeting Chinmay and the way he's just spoken to everyone, he's been very, very helpful. And thank you so much, Chinmay, for agreeing to do this session on behalf of Force DBS. And we are looking forward to, you know, kind of have more meaningful conversations with you, so that people who are aspiring to be in the defense forces, they can gain from it. And lastly, from all of us, everybody who's here, we wish you all the best so that you reach the academy. And it's all my pleasure to first of all interact with you and work with you, to be honest. I also कभी सोचा नहीं था कि जिनको मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ एक दिन उन्हीं के साथ बैठ के will do some live. तो मैंने भी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, ऑनेस्टली अच्छे पूछे थे, डोंट वरी. पर there was a time when I used to also ask the questions like in your live sessions वगैरह. But now it's my pleasure to actually share screen with you and, you know, talk with all these guys. And I'm sure many people are there over here who are much more capable to be in the academy. थोड़ा डेट की बात है, लोगों को पता चलने की बात है, वरना तुम सब लोग recommendable candidates हो, to be honest. Just keep going. And as sir said ना कि जीत हार के बीच में बस patience का ही फासला है. You have to keep your perseverance high and you'll make it. कोर्स नंबर तो नहीं बता सकता है अभी यहाँ पे. अच्छा, कोर्स नंबर I was in, as I had mentioned. So yeah, and as sir rightly mentioned, we will have even more sessions on this topic also. तो अगर कुछ ऐसा है जो छूट गया है या फिर तुम्हें बाद में पूछना है, you can always ask. You can message me also. You can DM me. But you can prepare your questions on this topic. अब तुमको पता चल गया है टॉपिक क्या है, बंदा कौन है, तो you can ask these questions. जो भी डाउट आता है, you can always keep your questions ready. So yeah, I think that is about it. ये एक 116 पे मेरा रिमार्क है, एक मीम है ना मार्केट में, बहुत हरामी है बेटा. Yeah, so कोर्स नंबर से वैसे बहुत कुछ पूछ लिया तुमने, पर ठीक है, कोई बात नहीं. तो या ओके सर. या सो नहीं सर, घबराहट बस तब होगी जब वो सीनियर निकल जाए बाद में. वापस भी तो जाने. या यस सर. So yeah, thank you everyone for patiently listening, and it's my pleasure, to be honest, to be on the same platform with sir. So yeah, thank you everyone, and I hope one day you all come on this side as well. और तुम फिर सबकी help करो, tell your experiences. I'm sure many of you will come here to share your experiences as well. Brilliant. So thank you so much, Chinmay, once again. And today I'll have to request you for something. After the session is out, Yes sir. अच्छा नहीं, ये मेरे पे सेव होगा. I came live first, ना? Okay, cool. All right. So thank you so much, everyone. And Chinmay, it was a brilliant session. Lovely having you here. Yes, sir. And we will continue to take your help to help everybody who want to do better in their
subsequent SSBs and those who are already there in the OTA Thank you, sir. or IME My or any pleasure, other sir. training Jai Hind. center. Thank you so much. Bye, sir.